The problems are this, sir. The problems are the central government will not appoint women to the judiciary. They will not appoint lower caste to the judiciary. They will not appoint religious minorities to the judiciary. They will not appoint gay people to the judiciary. You only appoint judges who you think have your ideology. This will not go on record. That is No. The question is that the bill be returned. Those in favor will please say aye. 4 days before the Supreme Court was closing for summer vacations, आप इस बिल को, इस ऑर्डिनेंस को लेके आए फॉर इंक्रीज ऑफ जजेस। पहले 34 जजेस होते थे, अब 37 हो जाएंगे ऑर्डिनेंस के बाद। आप बताइए, 4 दिन बाद पार्शियल वेकेशन सुप्रीम कोर्ट के स्टार्ट हो रहे थे, जुलाई में पार्लियामेंट सेशन स्टार्ट होने वाला था। व्हाट वाज द हरी टू ब्रिंग दैट बिल, दैट ऑर्डिनेंस ऑन दैट डे, ऑन 26th of May? Why I'm saying this, आपने 4 जजेस ऐड किए, 2 जजेस, 2 बेंचेस बनी, 95,000 cases are pending in Supreme Court. Was this even making a difference in those 15 days? Why wasn't this brought as an act, straight to the parliament, have a debate, and then amend? Who would oppose? Nobody is opposing that judges should not be increased. But is it? The problems are this, sir. The problems are the central government will not appoint women to the judiciary. They will not appoint lower caste to the judiciary. They will not appoint religious minorities to the judiciary. They will not appoint gay people to the judiciary. You only appoint judges who you think have your ideology. This will not go on record. That is No. Please speak. Sir, there are 30% vacancies in all the high courts. 30% vacancies in all the high courts. Women are 14%. Women are 14% of all high court judges. 14%. The reality is that between scheduled caste, scheduled tribes, women, there are under 20% of the judiciary. Between 2018 to 2026, this government appointed 3% scheduled caste judges. They appointed 2% ST judges. They appointed 12% OBC judges. These are the issues. So today, in my hometown, in the capital of India, where the constitution was made, you want to pass 4 judges in this capital where students were beaten outside. The Home Minister won't come and talk about pensions. This is not a parliament. This will not go on the record. No. You have to speak on the bill. That will go on the record. You please speak on the bill. माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी, सिर्फ आपकी बात ही रिकॉर्ड पर जा रही है, प्लीज। Honorable Deputy Chairman, sir, with your kind permission, I rise to move that the bill further to amend the Supreme Court Number of Judges Amendment Act 1956 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. मोशन मूव। मामले सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। औसतन ऑन एन एवरेज more than 65,000 cases are being filed every year और डिस्पोजल होता है 50 से 55,000। तो ये जो रेकरिंग जो बढ़ोतरी होती जा रही है, इसका उपाय अगर माननीय मोदी जी के सरकार ने सोचा तो इस देश की जनता उनकी आभारी है। अभी सिर्फ 34 का स्ट्रेंथ था, 8 से शुरुआत की थी हमने सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट लास्ट कोर्ट है महोदय, यहां बहुत ही महत्वपूर्ण मामले अभी लंबित हैं। बहुत से कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के 5 जजेज, 7 जजेज, 9 जजेज, 11 जजेज, वैसे मामले पेंडिंग हैं, लेकिन जजेज के अभाव में उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही। अभी हमारे जजेज, ये पूरे दुनिया को जानना चाहिए, मैं एक वकील हूं, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूं, हमारे जजेज ऐसे जजेज हैं जिन्होंने रिकॉर्ड किया है कि 100 से ज्यादा केसेज हर एक दिन वो डिस्पोजल करते हैं। बावजूद इसके अभी पेंडेंसी कम नहीं हो पा रही है, बैकलॉग कम नहीं हो पा रहा है।
तो ये जो 34 से 38 बनाने का जो प्रावधान, जो ये विधेयक है, ये बहुत ही स्वागत के योग्य है। मैं समझता हूं कि इससे बहुत ज्यादा लाभ होगा, ये काफी आवश्यक था। अभी मैं बताऊं, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट से नहीं होगा। हमारे एक मित्र ने सही कहा, राज्य सरकारों को इस पर ध्यान देना होगा। राज्य सरकार के अधीन जो लोअर कोर्ट्स हैं वो आते हैं। लोअर कोर्ट्स में ही लाखों लाख मामले पेंडिंग हैं। वहां न्यायाधीशों की जो बहाली है, उनका अपॉइंटमेंट्स है, उनका सर्विस कंडीशंस है, वो राज्य सरकारें तय करती हैं। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि लोअर कोर्ट्स में ना ही इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना ही अपॉइंटमेंट्स समय पे होते हैं। बहुत ज्यादा वैकेंसीज वैसे ही पड़ी हुई हैं और नतीजा ये निकलता है, अभी हमारे एक मित्र ने कहा कि बरसों लग जाते हैं सिविल केसेज के डिस्पोजल में। तो वो चूंकि न्यायालयों में, निम्न न्यायालयों में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जजेज की बहुत कमी है, न्यायाधीशों की कमी है, इसके वजह से वो पेंडेंसी होती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में ये 34 से 38 की जो संख्या बढ़ाई जा रही है, बहुत ही स्वागत योग्य कदम है और इससे बहुत लाभ होगा सुप्रीम कोर्ट के केसेज के, उसके मैं समझता हूं कि उनके समाधान में। मान्यवर, जिस तरह से देश में अपराधों की संख्या बढ़ रही है, हत्या, लूट, बलात्कार, जमीनों पे कब्जा करने की घटनाएं बढ़ रही हैं, उसी प्रकार से जजों की भी संख्या बढ़नी चाहिए और कोर्ट्स की भी संख्या बढ़नी चाहिए, कोर्ट रूम की हालत भी सुधरनी चाहिए। उस दिशा में ये एक अच्छी पहल है सरकार की ओर से। लेकिन मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि देश के जिला न्यायालयों में 5 करोड़ केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। 5 करोड़ केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। देश के हाई कोर्ट्स के अंदर 60 से 65 लाख केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 96,000 केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। क्या उसके हिसाब से आपके पास जजेज की संख्या पर्याप्त है? क्या उसके हिसाब से आपके पास कोर्ट्स की संख्या पर्याप्त है? अगर हिंदुस्तान की बात हम लोग करें मान्यवर, तो हिंदुस्तान में 10 लाख की आबादी पर एक जज है। विधि आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से, और बार बार आपसे अनुरोध किया गया है कि 10 लाख की आबादी पर कम से कम 50 जजों की नियुक्ति आप कीजिए। निश्चित रूप से आप 33 की संख्या बढ़ाकर 37 सुप्रीम कोर्ट में कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ आपको कोर्ट्स की भी संख्या देश में बढ़ानी पड़ेगी। और जो आज आबादी के मुताबिक जजों की संख्या है, हर स्तर पे उसको भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह सरकार से पूछना चाहता हूं, कांसीराम जी का नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। आज मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे पूछना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस में कितने पिछड़े समाज से हैं, कितने दलित समाज से हैं, कितने आदिवासी समाज से हैं, कितने समाज के वंचित तबके से आते हैं? नहीं मान्यवर, उनकी भागीदारी बिल्कुल शून्य है। इसलिए न्याय अगर आप करना चाहते हैं, आज न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, पत्रकारिता हो, सब में बराबर का प्रतिनिधित्व समाज के वंचित, शोषित, पिछड़े, दलित, आदिवासी तबके को देना होगा। इसके साथ साथ मैं अनुरोध यह भी सरकार से करना चाहता हूं, न्याय की स्थापना तब होती है जब ऊपर से लेकर नीचे तक न्याय करता हुआ दिखे। लेकिन बड़े अफसोस की बात है, 15 साल की बच्ची से प्रधानमंत्री लड़ेंगे तो कैसे न्याय होगा? सर, मुझे अपनी बात खत्म करनी है, मेरा समय बचा है, समय बचा है। मैं कह रहा हूं, बोल रहा हूं सर, आप बोलिए, पर बिल पर खत्म कर रहा हूं, बिल पे ही बोल रहा हूं सर, बिल पे ही बोल रहा हूं, इतनी देर तक बिल पे बोला। सर, मेरा अनुरोध ये है कि सरकार ऊपर से लेकर नीचे तक न्याय करती हुई दिखे। 15 साल की बच्ची से प्रधानमंत्री बनना चाहिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। झूठा संसदीय है। संजय जी बैठ जाइए, आप बैठ जाइए, उन्हें बोलने दीजिए। मैंने आपको तारीफ इसलिए किया क्योंकि आपने बिल को अच्छा पहल बोला। दूसरी बात, उन्होंने SC ST रिजर्वेशन जुडिशरी में बताया, ये
अपॉइंटमेंट नोटिफिकेशन सरकार जरूर करते हैं, नाम तय तो कॉलेजम करते हैं। वहां SC ST का नाम अगर कॉलेजम नहीं भेजेंगे, सरकार अपने आप से नाम ढूंढ करके अपॉइंट कर नहीं सकता है। इसलिए कहीं गलत मैसेज ना जाए कि सरकार SC ST का अनदेखा किया गया है, गलत मैसेज ना जाए, इसलिए मैं स्पष्टीकरण करने के लिए खड़ा हुआ। धन्यवाद। माननीय सदस्यगण प्लीज नो प्लीज। माननीय सदस्यगण, मेरा आप सबसे निवेदन है, मेरा आप सबसे निवेदन है, एक मिनट, मेरा आप दोनों बैठ जाए। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्यगण प्लीज शांति रखें। The question is that the Supreme Court number of Judges Amendment Bill 2026 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up clause by clause consideration of the bill. Clauses 2 and 3 stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. Clauses 2 and 3 are adopted. Clause 1, the enacting formula and the title stand part of the bill. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the title are adopted. Shriman Arjun Ram Meghwal ji to move that the bill be returned. Honorable Deputy Chairman, sir, with your permission, I move the motion that the bill as passed by Lok Sabha be returned. Motion moved that the bill be returned. The question is that the bill be returned. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The bill is returned.